Hello, good morning student. Today we are going to study business economics. Business economics, in my last lecture for business economics, I have explained you, I have taken the chapter determination of income and employment. Income and employment. In this, regarding this chapter, today I am going to take this topic. What do you mean by aggregate demand and explain its component? Aggregate demand, as you know कि the government, the planning committee of our India have the responsibility to make the planning about the development of the country, कि how to make the development for the commencing year or coming planning. In this chapter, determination of the income and employment. Now, income and employment, to planning committees first of all recognize what are the demand, what are the aggregate demand. As by name, aggregate demand, it means the all over country, all the demand sector. As I have explained you, the whole economy is run on the two wheel. That two wheel is demand and supply. The two wheel of two wheel is demand and supply, on which the whole economic sectors are run. As the two-wheeler vehicle are running on the two wheel, in the same way the vehicle of economic sector is run on the two wheel, that is demand and supply. Today we will study about what is aggregate demand. The aggregate demand refers to the total expenditure of all the goods and service. Total expenditure on all the goods and service in the economy, and we are says that it consists of the total expenditure and consumption of the investment on import and export. All are involved in this aggregate demand. Expenditure on the goods and services. You know what is goods and services? Goods and services. What is the meaning of goods and services? Here we are talking about the goods and services in the India. Goods means all that product which we are going to the shop and purchasing the goods and services regarding the FMCG, means food items and edible things, all that electronics item for the household furniture and whatever it is, whatever goods we are purchasing, that is comes in the goods and services. Now tell me, what is services? The meaning of services, which we are purchasing the services from the market. What type of services we are purchasing? For example, the services of teacher. As I am providing you the service of my teaching, I am not going to giving any product. Come to me and give the fee and take this. This is your teaching. This is my teaching and take it. No. In the same way, lawyer, in the same way, doctor, they are providing their services. The fees, जो फीस हमसे लेते हैं, उस फीस का मतलब क्या होता है कि that you are purchasing their services. That is the common words, goods and services. So it is given aggregate demand refers to the total expenditure on all the goods and services in the economy. We can say that it consists of the total expenditure on the consumption, investment, import, export, all these things called the aggregate demand. It means it is aggregate demand. Now I am going to discuss about what is the next part of the question. Explain its component. Now components of the aggregate demand are, I am going to discuss over here. The first is household consumption demand. Household
consumption demand. As by the name, household consumption demand. Household consumption demands refers to the expenditure done by the various families in a country. जितनी एक कंट्री में जितनी भी वेरियस फैमिलीज हैं, तो वेरियस फैमिलीज मीन्स all the population of the country living in the boundary line of a area of a country, that is the families of the country, depends on the level of the income. Now as depends on the level of income, here I am going to explain कि हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर, घर के जो भी खर्चे हैं, एक फैमिली में जो भी खर्चे होते हैं, देखो जैसे स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी अभी एज दी प्रीवियस टाइम विच वी हैव पासेस ओवर दी 3 months, व्हाट इज़ दी मेन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ वाज मेडिकल्स एंड हाउसहोल्ड, यस, किराना, सेम, किराना एंड मेडिकल, ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड कंजप्शन कहलाते हैं. हाउस होल्ड कंजप्शन यानी घर में खर्च होने वाले कंजप्शन, पानी, बिजली, किराना, ये वॉट एवर दैट ऑल डिमांड इज कॉल्ड एज दी हाउस होल्ड कंजप्शन. मीन्स द एक्सपेंडिचर डन बाय द वेरियस फैमिलीज इन अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द इनकम. अब सबका लेवल ऑफ इनकम है. एज इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द होल सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूट इन दी 3 level. First 3 level, or we can say 3 class: high class, middle class and lower class. And who has distributed these classes? Tell me how we recognize, हम कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से क्लास का पर्सन है. The living standard of the people shows and defines that which class the person is belong from which class. Living standard, and this living standard is depends on the level of income. As the income of the people is there, the people will live according to their income. So that is shows the household consumption is depends on the level of income. अब किसी की इनकम इतनी है कि वो 2 समय का अपना खाना और खर्चा चला सके. अब किसी की थोड़ी सी जब इनकम बढ़ती है तो दैट पर्सन विल कम्स इन दी लेवल ऑफ मिडिल क्लास एंड इन दी हाई क्लास. जब उनकी सोर्सेस ऑफ इनकम जो है थोड़े अच्छे सफिशिएंट रहते हैं तो दैट इज़ दी हाई क्लास. तो लेवल ऑफ द इनकम आफ्टर पेइंग द इनकम टैक्स पे करने के बाद द पर्सन लिविंग इन द कैटेगरी ऑफ हाई क्लास, दैट विल बी द इनकम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पेइंग द इनकम टैक्स, is called the disposable income. Disposable income, here I am going to take this word disposable income. Here disposable income, ऐसी इनकम जिनको हम डिस्पोज कर सकते हैं. यू नो द मीनिंग ऑफ डिस्पोज. व्हाट इज डिस्पोज मीन्स, यस, आप इसको इस तरीके से लेते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लेट, यानी द थिंग विच इज यूज ओनली फॉर वन टाइम ओनली, दैट इज कॉल्ड द डिस्पोजेबल इनकम. तो ऐसी इनकम जो सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती है. इट मीन्स जो इनकम को हम ऐसे खर्चों पे हाउस होल्ड कंजप्शन में यूज़ करते हैं जिसका कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता. फॉर एग्ज़ाम्पल किराना, हम हर महीने हमारे घर में जो भी है, सपोज करिए किसी फैमिली का 10,000 का किराना एक मंथ का आता है, तो वो जो 10,000 रुपये उसकी इनकम का 10,000 रुपये जो हुआ 10,000, दैट 10,000 विल बी दी डिस्पोजेबल ऑफ द इनकम दैट पर्सन. उस व्यक्ति की वो 10,000 रुपये की डिस्पोजेबल इनकम तो कर रहा है, उसको 10,000 हो तो रहा है, लेकिन वो हर महीने कहाँ जा रहा है? सिर्फ किराने में जो हम खाते हैं और वो डिस्पोज हो जाता है, ऐसा नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक तो पेट्रोल ऑफ द व्हीकल एक बार हमने भरवा लिया और वो ऐसा तो नहीं है ना कहीं पे कि भाई हम उसको जो है वो कहीं सेव कर रहे हैं और उसके बाद भी. इसी तरीके इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ
रिगेन इनकम, जिस पैसे को हम कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, जिससे कि हमें पता है कि ये हमने आज ज़रूर है हमसे खर्च हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो हमने कहीं कोई सेविंग में करा है या रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने इतना देना, हर महीने देना, जब किराना देना है और हर महीने इधर भी देना है। लेकिन ये दो इनकम हो गई, एक इनकम हो गई डिस्पोजेबल इनकम और एक इनकम हो गई इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इसी तरीके से मेरे फर्स्ट पॉइंट का टॉपिक है हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। तो इसी तरीके से ऑल ओवर कंट्री में रहने वाली जो फैमिलीज़ है वो हर महीने किस फैमिली में किसका, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। हमारी प्लानिंग कमेटी इस पूरे रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज करती है कि पर्टिकुलर कंट्री में जो भी फैमिलीज़ रह रही है वो कितना कंजप्शन कर रही है। तो इससे पता चलता है कि कितना डिमांड है किराने का मार्केट में। नाउ आई एम कम टू दी सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट डिमांड। Investment demand. As I have discussed just now in my this topic, investment demand, the people done on the investment purpose. हर फैमिली में आज हर इंसान जो है इस चीज़ के लिए जागरूक है, हर इंसान इस चीज़ के लिए कॉन्शियस है अबाउट देयर फ्यूचर सिचुएशन। एवरीबडी, और हर फैमिली में कहीं ना कहीं कोई LIC पॉलिसीज़ ली हुई हैं, कहीं कोई रिकरिंग डिपॉजिट हो रहा है, कहीं कोई सेविंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिटिल बिट सेविंग कर रहे हैं। सेविंग क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारी प्लानिंग कमेटी जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कंट्री में रहने वाले फैमिलीज़ का, उन्हीं फैमिलीज़ के इन्वेस्टमेंट सेक्टर को भी पूरा रिकॉग्नाइज करती है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिमांड को भी पता लगा के ये जो है एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट किया जाता है कि हाउ मच डिमांड इज़ प्रेजेंट इन दी कमेंसिंग ईयर की। अगर इस समय में इतना डिमांड है किराने का, इतना डिमांड है इन्वेस्टमेंट का, इतना डिमांड है मेडिकल्स का, मेडिसिन्स का, ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग कमेटी रिकॉग्नाइज करके एग्रीगेट डिमांड के अंतर्गत पता लगाती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन द सेम वे गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखती है कि गवर्नमेंट की साइड से कितना डिमांड है। नाउ टेल मी, हम गवर्नमेंट की कितनी फैसिलिटी हायर करते हैं? हाउ मैनी थिंग गवर्नमेंट की। अभी जैसे कि अभी जो समय था, इस समय गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को कंट्रोल के राशन बांटे गए, तो भाई गवर्नमेंट के पास पूरा हिसाब है कि कितना सामान बांटना है उनको, क्योंकि जिनके राशन कार्ड के थ्रू, राशन कार्ड का नाम सुना होगा आपने, तो राशन कार्ड के थ्रू भी गवर्नमेंट का कितना डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी गवर्नमेंट कितने गुड्स सप्लाई करती है मार्केट में, वो भी पूरा हिसाब प्लानिंग कमेटी इसके थ्रू भी, इस कंपोनेंट में भी उसका एक कंपोनेंट है जिसके थ्रू वो पता लगाती है व्हाट इज़ दी एग्रीगेट डिमांड ऑफ दी होल कंट्री। पूरी कंट्री का एग्रीगेट डिमांड कितना है। Here I am going to read this point. Government has also having the demand for the consumption for the investment purpose. Railway, road, medical facility, security, administration, etc. But there is a lot of difference between public and private investment. Private motive and public investments are for the social welfare. So private investment is the motivated investment and public are called the social investment. तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट है ये सब गवर्नमेंट के साइड से कैलकुलेट किया जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कितना डिमांड एंड सर्विसेज मार्केट में आने वाला। सर्विसेज, हेयर अगेन आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट दी सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा जो रेलवे डिपार्टमेंट है, ये सारी डिपार्टमेंट की ये सारी सर्विसेज हम गवर्नमेंट के लेते हैं। हमको कहीं यहाँ से बाहर जाना है तो हम फट से जाते हैं रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन कराए, लेकिन एवरीथिंग रिजर्वेशन वी आर पेइंग दैट सर्विस फॉर पेइंग दैट सर्विसेज एंड वी आर जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर दैट इज टिकट and going to the railway station and we got the train also and we can sit on the reserved seat. So these all services provided from the government side. That why the component of aggregate demand is also the government demand and goods and services. Now net export demand is the next point. Net export demand. Now net export demand,
as in the 11th class also, and you all know what is import and export. Now export demand yani what is the meaning of export? When the product is sold to the another country is called the export. तो एक्सपोर्ट का भी जो है कितना डिमांड है, कितनी कंट्रीज़ जो है वो हमारी इंडिया के प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कितना डिमांड करें, ये भी एक और बैरोमीटर, एक कंपोनेंट है जिसके थ्रू प्लानिंग कमेटी पता लगा सकती है व्हाट इज़ दी एग्रीगेट डिमांड ऑफ दी पर्टिकुलर टाइम. नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दीज ऑल पॉइंट्स एंड दीज आर द पॉइंट्स. Student, read this point carefully and try to understand and read the book also. This is your, and now I am going to conclude my lecture.